Hello everyone, welcome to JC Academy. This is our part 3 of the series where we are discussing the December 2025 questions of ICT unit. I am your educator for paper 1, Arana Tagotra. If you are new to the channel and you have not subscribed JC Academy, do subscribe our channel to avail all these benefits. These are the shining stars of JC Academy who have cleared their December 2025 attempt. If you want to be one of them, JC Academy is offering a complete foundation course for paper 1 and paper 2 management with multiple validity options. For any query, you can call on the given number. Also, complete foundation course for paper 2 management is available on the website. You can visit our official website or you can call on this given support number. For complete paper 1 foundation course, a scholarship offer of flat 50% is going on where you can use the code GIFT50 to avail 50% off on UGC NET paper 1 course. Now starting with question number 1, it is from number system. We have to identify the correct descending order of the following numbers. Descending order मतलब बड़े से छोटा from highest to smallest. तो हमें ये चार बेस डिजिट्स दिए हुए हैं 4, 2, 8 एंड 16. हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. सो टू कन्वर्ट देम इनटू डेसिमल नंबर, जो भी उनका बेस नंबर है हम उससे उस बेस नंबर रेज टू द पावर 0 देन बेस नंबर रेज टू पावर 1 ऐसे करके हम उसको ऐड कर देंगे एंड देन वी विल गेट आवर फाइनल आंसर. देखिए 103.2 बेस 4, तो हमने सबसे पहले क्या किया, मैं आपको एक करके बता रही हूँ. 103.4 और सॉरी 103.2 एंड बेस इज 4, सो इट विल बी 3 इंटू 4 की पावर 0 प्लस देन 0 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 4 की पावर 2. और 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज आफ्टर द डेसिमल, it will be 2 into 4 की power minus 1. It does not start with 0 after the decimal. It starts with 1 but a negative 1. So 4 का square into 1, 16, 0, 0 and anything raised to the power 0 is 1. So it will be 3 and 2 into 4 की power minus 1. It means 2 into 4 की power minus 1 मतलब 1 by 4. So 1 by 4 is 1 by 2 which is 0.5. तो 16 plus 3 plus 0.5 it will be 19.5. ये था हमारा बेस 4 के लिए. अब वैसे ही अगर बेस 2 है तो हमने 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 5, क्योंकि सी दिस इज 2 रेज टू पावर 0, दिस इज 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4. ये तो 0 0 है तो ये कैंसिल हो गए, तो सीधा 2 रेज टू पावर 5 आ गया. और ये क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर माइनस 1 एंड दिस विल बी 2 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 2. तो अब जब सॉल्व करेंगे आपको 35.75 मिलेगा. देन 46.2, 6 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 1 एंड 2 इंटू 8 की पावर माइनस 1, इट विल गिव 38.25. 36.6, 16 बेस, so 6 into 16 की पावर 0 plus 3 into 16 की पावर 1 and 6 into 16 की पावर माइनस 1, तो हमें मिलेगा 54.375. जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज from which of the following from the following computer devices, which of them are computer networking devices? CDRW, hub, हार्ड डिस्क, स्विच, राउटर. सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस होता क्या है. सो नेटवर्क और नेटवर्किंग डिवाइसेस और हार्डवेयर, दे आर द फिजिकल appliances or the devices which are required to communicate and interact between the different computers which are connected on a computer network. Like we have hub, router, gateway, NIC, modem, VPN, IDPS, firewall, WAP, and repeaters. So all these are network devices which allow different computers over a network to communicate with each other, exchange files and information and the resources with each other. So this is the basic function of a network device. So among these, CDRW is not a network device and hard disk is not a network device. So hub, switch and router, that is option number 2, BDE is the correct answer.
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम MS Excel, हमें रेफरेंसिंग से उन्होंने पूछा हुआ है। देखिए हमारी जो एक्सेल की शीट होती है, इट कंटेन्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स और इनको हम क्या बोलते हैं, रोज। सो कॉलम्स वी हैव A B C D, rows let's say we have 1 2 3। तो ये जो सेल होगा, ये इस सेल को हम कैसे नाम देंगे, इट विल बी A1। दिस सेल, ये वाला जो सेल होगा इसको क्या बोलेंगे, C2, ठीक है। यानी पहले कॉलम का नाम आ रहा है फिर रोज का नाम आ रहा है। अब देखिए अगर मैं बोल रही हूँ $E एंड $5, यानी ई कॉलम, लेट्स से यहाँ पे एक और कॉलम है ई कॉलम एंड लेट्स से यहाँ पे 2 रोज और थी, ठीक है। ये 2 रोज और थी, फॉर एग्जाम्पल 4th एंड 5th। सो E5, हम इस वाले कॉलम इस वाले सेल की बात कर रहे हैं, दिस सेल इज E5। बट अगर हम डॉलर लगाते हैं, डॉलर का मतलब हमने उसको फिक्स कर दिया है, उस सेल को, उस कॉलम को, उस रो को हमने फिक्स कर दिया है। सो इफ इट इज $5, इसका मतलब क्या है, $5 का मतलब कॉलम एंड रो आर फिक्स्ड, दोनों रोज और कॉलम्स यानी बोथ द कॉलम एंड द रो इज फिक्स्ड एंड इट इज नोन एज एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है $5, यानी हमने सिर्फ रो को फिक्स कर दिया, कॉलम हमारा फिक्स नहीं है, क्योंकि कॉलम के आगे जो ई है उसके आगे डॉलर नहीं लगा है। सो $5 का मतलब है मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस मीन्स दैट द रो इज फिक्स्ड बट कॉलम कैन बी चेंज्ड। देन E5, इट इज अगेन अ रिलेटिव रेफरेंस। E5 मतलब दोनों ही चेंजेबल है, कोई भी फिक्स नहीं है। एंड $E5 यानी जो हमारा कॉलम है ई कॉलम, वो हमने फिक्स कर दिया है, लेकिन जो हमारा रो है वो चेंजेबल है। तो उसके बेसिस पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 होगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो देखिए $5, कॉलम एंड रो बोथ आर फिक्स्ड। $5 यानी दिस इज द रो, 5th row, and column is E. So row is fixed, column changes. E5 both can change, and $E5 means column is fixed but row can change. Then next question is from assertion reason. RAM is a volatile memory. Correct statement. RAM does not need power supply continuously to retain data. Incorrect statement. अरे वो वोलाटाइल है, इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी, यानी द डेटा विल बी लॉस्ट जब उसका जो पावर सप्लाई है वो बंद हो जाएगा। सो इट नीड्स अ कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई टू रिटेन द डेटा। सो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair of acronym and its expansion is incorrectly matched? CPU, central processing unit; DVD, digital versatile disk; MAN, metropolitan area network; UPS, uninterrupted power software. This is not software, this is power supply. So UPS is a device which provides an uninterruptible supply of power so as to maintain the continuity. So UPS stands for uninterruptible power supply. कॉन्टिन्यूस हमारे जो सिस्टम है उसको अगर हमें पावर देनी है तो वो हम किससे देते हैं, हम वो यूपीएस से देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ आईसीटी? आईसीटी हम जैसे जैसे यूज कर रहे हैं तो उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स थे। एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस ऑफ द सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पेविंग द वे फॉर लो कॉस्ट हार्डवेयर। ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारे आईसीटी बढ़ रहे हैं, अगर हमारे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंक्रीज करिए तो जो भी हमारे चिप्स हैं या जो भी हमारे हार्डवेयर है उनकी कॉस्ट लो होती जा रही है। इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एंड इंटरफेसेस, करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो हमारे दे आर, यू कैन से वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं या जो भी हमारे इंटरफेस आ रहे हैं, दे कैन बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड्स, सो ऑब्वियसली दे आर वेरी यूजर फ्रेंडली। Then merge of computer and communication technology to produce smart and mobile devices. Again, a correct statement.
हम कम्युनिकेशन को कंप्यूटर के साथ मर्ज कर रहे हैं ताकि हम स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस बना सकें, करेक्ट स्टेटमेंट है। देन राइज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग leading to services like Google Docs and Microsoft 365 without the need for large investments in hardware, correct statement। so हमारे ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ABCD सारे ही जो ये, क्योंकि सब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं और ये सब हम ICT का यूज करके हम एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बना रहे टू द इकोनॉमी एज वेल, सो ऑल दीज statements are correct। Then match the following. Producing a letter to send to patients. Database, word processing, presentation and spreadsheet. आप लेटर किस पे टाइप करते हैं? वर्ड पे। एक सेकेंड मिलते ही ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। क्रिएटिंग द ग्राफ्स टू शो द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द हेल्थ सेंटर, इट इज अ स्प्रेडशीट, क्योंकि आपको स्प्रेडशीट में ग्राफ्स का चार्ट्स बनाने का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल होता है। देन क्रिएटिंग द क्वेरीज फ्रॉम द पेशेंट्स इन डिटेल, सो दैट इज अ डेटाबेस। आप डेटाबेस में स्टोर करेंगे जो भी आपको क्वेरीज या जो भी आपको प्रॉब्लम्स पेशेंट से मिल रही हैं। एंड देन क्रिएटिंग एन इंटरैक्टिव डिस्प्ले ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड, ऑब्वियसली इट विल बी अ प्रेजेंटेशन। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। Next question again from assertion reason. Search engine is a hardware device that searches for any website on the World Wide Web. कुछ नहीं पढ़ना, सर्च इंजन हार्डवेयर है, गलत स्टेटमेंट। जब ए इनकरेक्ट हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। सो गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट बिंग आर 2 पॉपुलर सर्च इंजन्स, करेक्ट स्टेटमेंट है। सो जो हमारा सर्च इंजन है, इट इज नॉट अ हार्डवेयर डिवाइस, इट इज अ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। Now, which of the following pair of acronym and its expansion is incorrectly matched? आपको ये पढ़ना है कि करेक्टली पूछा है कि इनकरेक्टली पूछा है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल, इनकरेक्ट। UDP is user datagram protocol and ROM is read only memory. So SMTP is simple mail transfer protocol, which is an application layer protocol used to send and transfer the email between two servers. अगेन क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम सेम है, बट हमें उसको करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। वो असेंडिंग ऑर्डर में था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सो 4, 2, 8 एंड 16 बेस हमें गिवन है, ठीक है। आप ये खुद से एक बार ट्राई करेंगे, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ऑल्दो आई हैव प्रोवाइडेड द सोल्यूशन, ठीक है, बट आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे और फिर आप देखेंगे कि जो आपका आंसर है क्या वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो आपसे दिसंबर 2025 में पूछे गए थे। एंड वंस अगेन अ क्विक रिमाइंडर, JC Academy इज ऑफरिंग ऑल दीज पैकेजेस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम एंड यू वांट टू बी वन ऑफ द स्टूडेंट जो JC Academy से पढ़ के जिसने अपना एग्जाम क्लियर किया है, तो आप इन पैकेजेस को गो थ्रू कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑल्सो दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ JC Academy। अगर आप अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया है तो प्लीज कनेक्ट कर लीजिए। एंड दिस इज आर पेपर 1 टेलीग्राम ग्रुप, अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।